नीचे में फटाक दे। यहाँ पर कहाँ पर है? हाँ हाँ, तो हमने ये रास्ता में आप सीधा बढ़ते दोनों पर सीधा ही है। हाँ ये सीधा में सीधा ही है। हाँ गिरजा भाई तो आगे बढ़िए, देखिए मस्जिद है, रोडे पर मस्जिद है। बताइए नहीं पता है। हाँ तो देख गया। मंच से करीब आए और अपने आसन को ग्रहण करें। साथी भाई हमारे बीच उपस्थित है और मैं चाहूँगा कि शुक्र अली भाई, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो जितना जल्द हो सके इस प्रोग्राम को शुरू करें। और मैं मास्टर इस प्रोग्राम का I would like to start by wishing all my respected teachers a very happy Teachers' Day. It is because of your hard work and dedication that you as a student learn and grow into a better person every day. I would like to thank all the teachers for always standing with us as a supportive pillar and correcting our numberless mistakes to mark. Their hard work towards teaching and honor them with appreciation. Teachers' Day is celebrated all over India on 5th September. It is celebrated as the birth anniversary of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, who was one of the successful presidents of India, a great scholar and ideal teacher and a Bharat Ratna recipient. Dr. Sarvepalli Radhakrishnan was one ideal teacher and a great scholar. He was the first vice president and second president of India. He was born on 5th September 1888 at Tirupati in Tamil Nadu. He raised the value of India to the whole world through his writings and speeches. He was awarded the Bharat Ratna in 1954. He was died on 7th April 1975. तालियां आपकी कमजोर है, इस बच्ची के साथ अपनी थोड़ा जोरदार तालियां एक बार हो जाए। और उसी सिलसिले को बढ़ाते हुए मैं अबू तालिब एक नंदा बच्चा जो हमारे याद भाई के साहबजादे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आए अपनी बात रखते। आइए अबू तालिब साहब। Good evening, respected all the teachers and present over here. My name is Amrita. Today we have gathered here to celebrate the Teacher Day on the auspicious of Happy Teacher Day observed in India on 6/23/23
Dr. Saripalli Radhakrishnan these days are best as a tribute to the invaluable man by teachers in shaping the future of students. The celebrate of Teacher Day in India is only a myth of saying tribute of teacher, but also a reminder of the responsibility that comes with interpretive knowledge. Thank you. थैंक यू अबू तालिब, बहुत जोरदार तालियां अबू तालिब के लिए। और मैं Good evening, sir. First of all, I would like to call Sir V.B. Murali as a speech from Honorary V.B. Murali, sir, from JYVK High School. Our honorable counselor, sir, is guests and the persons of local influence, I would like to wish you all a happy Teachers' Day and good evening everyone. Today our favorite respectable Ward Councillor Sri Arman Mandal sir has been arranging this beautiful program with his auspicious thoughts to honor the social pivotal role players, the teachers of our society in Chittagong in this ward number 4. As a person, I would like to thank Mr. Arman Mandal. As I saw with my experience, he is a very socially aware person, and always whenever there is a necessity and need of people who are in distress and who are in trouble, there we can find Mr. Arman Mandal. That is his character and personality, and such leadership qualities he possesses is always essential for the development of society. Not only this one, he is also developing the environment and eradicating the pollution. And now I would like to thank him for giving me this opportunity to speak a few words. Today we are celebrating our honorable second President of India, Sri Sarvepalli Radhakrishnan birthday. His birthday प्रतिज्ञा को सम्मान दे रहे हैं बैच और उत्तरी पहनाकर। लिहाजा मैं मुफ्ती साहब से गुजारिश करता हूं कि आप जितना जल्द हो सके आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। ये देखिए बुफे उनको दिया जा रहा है, आप ताली बजाकर कम से कम इनका हौसला बढ़ाएं। ये हर काम को छोड़कर हमारे साथ मौजूद है, लिहाजा उनको भी सम्मानित किया जा रहा है। और मैं ये चाहूंगा कि साथ ही साथ मुफ्ती सलामत हुसैन नूरी साहब किबला को ये हमारे बहुत अच्छा भाई, आप लोग ताली बजाना काहे भूल जाते हैं मेरे भाई, तो बार बार आपको फोटो करना होगा, ताली बजाइए। लिहाजा मैं चाहूंगा कि राजू अरमान मंडल भाई आदि मोहतरम है। आइए देखिए हमारे बीच टीटागढ़ म्युनिसिपल के चेयरमैन जनाब कमलेश साहू जी उपस्थित हैं।
मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। नंबर 5 के काउंसिलर वो मेरे माथे की निगाहों के सामने है, उनका भी मैं हार्दिक काम है वो मैं नहीं बता सकता इसलिए कि समय है नहीं, लिहाजा मैं सिर्फ उनके नाम का ऐलान करता हूँ। ये देखिए खूबसूरत तोहफा और कलम से नवाजा जा रहा है मुफ्ती सलामत हुसैन साहब किबला। तालीम से, कुरानी तालीम से, तहजीब तमद्दुन से आरास्ता पैरास्ता करने का काम कर रहे हैं। इनके जरिए से बच्चों को तरबियत दी जाती है, बच्चों को सलीका दिया जाता है। ये काम यकीनी तौर पर हमारे अरमान मंडल के सर जाता है, क्योंकि इन्हीं की मेहनत से ये मदरसा चलता है। मैं उसी मदरसे का एक अदना खादिम हूँ, एक उस्ताद की हैसियत से हूँ, और मैं समझता हूँ कि एक उस्ताद का मकाम क्या होता है, एक टीचर की हैसियत क्या होती है। यकीनी तौर पर ये टीचर हजरात जो होते हैं ये कौम का सरमाया होता है, कौम का कीमती दौलत ये होते हैं। ये वो दौलत है जिस दौलत के जरिए से कौम के नौनहानों के किरदार को संवारा जाता है, उनके कैरेक्टर को आरास्ता व पैरास्ता किया जाता है। इसीलिए आज तमाम टीचर्स के सम्मान में इस प्रोग्राम का एहतमाम हुआ है। बजाकर ताली बजाकर आप साथ दें कि ये जो सम्मान दिया जा रहा है हम उनके साथ हैं। हाँ मैडम। Good evening and namaskar to everyone on the special occasion of Teachers Day. September celebrated as Teachers Day as it is the birthday of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, a great teacher and the first Vice President of India. In 1962, he became the President of India. When some of his students and friends requested him to allow them to celebrate him. Welcome, welcome, Yazul Haq, welcome, 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 Yazul Haq, welcome, 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 Yazul Haq, welcome, welcome, welcome। देखिए हजरात, हम और आप जिनके लिए इंतजार में थे वो अजीम शख्सियत जो सरजमीने कोलकाता से चलकर बाप की वादी में जिन्होंने अपना कदम को रखा है, लिहाजा इस वक्त तमाम टीटागढ़ के नगरवासियों की जानिब से मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। शेख मोहम्मद बिलाउल हक ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस कोर कमेटी के मेंबर इस वक्त हमारे बीच चीफ गेस्ट की हैसियत से यहाँ हाजिर है, ये बात मुकम्मल करें। वाइस चेयरमैन जनाब मास्टर मोहम्मद जलील साहब, चांद मास्टर साहब से भी मैं अनुरोध करूंगा अखबार वेलकम किया जा सके। और जैसा कि टीटागढ़ की रिवायत रही है, वार्ड नंबर 4 के लोग बड़े ही प्यारे होते हैं। तालियां कम नहीं होनी चाहिए हमारे मेहमानों के लिए, थोड़ा जोरदार भरपूर अंदाज में तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि ये गुरुजनों का सवाल है, उनके सम्मान का सवाल है, आपकी मोहब्बत का मिसाल देते हुए जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए जब तक इस तकवालिया प्रोग्राम ना खत्म हो जाए। तालियां बजती रहनी चाहिए हमारे। जनाब राजुद्दीन साहब इस्तेमाल कर रहे हैं, जनाब वाजुल हक साहब का मैं यहाँ से एक बार फिर अनुरोध करूंगा कि हमारे त्रिपुर माइनॉरिटी सेल के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद एहतसामुल हक साहब का वेलकम करें, उतरी और बेल्ट पहनाकर सम्मान करें, स्वागत करिए। थोड़ा तालियां हो जाए हमारे
सामनगर से आए हुए अतिथियों के लिए। सामनगर से, सुनारपुर से, काफी दूर दूर से चलकर हमारे साथीदार कराम टीटागढ़ बाग बाजार में तशरीफ लाए हुए हैं 4 नंबर वार्ड में। उनको सम्मानित करते हुए, चैंपाल को सम्मानित करते हुए हमारे वार्ड के काउंसिलर जनाब याजुद्दीन साहब बैच उत्तरी गिफ्ट सब जगह अब मैं आवाज दे रहा हूँ कांकी नगर मातुम हाई स्कूल के हेडमास्टर जनाब अख्तर हुसैन साहब से। गुजारिश है वो मंच पे आए। जावेद इकबाल साहब जो एडीएम हाई स्कूल अंजुमन गरीबुल मुस्लिमीन के हेड मास्टर हैं, उनका सम्मानित कर रहे हैं हमारे पश्चिम बंगाल के माइनॉरिटी सेल के जनरल सेक्रेटरी एहतसामुल हक सर। जो हमारे पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस के कवर कमेटी के मेंबर हैं, सम्मानित कर रहे हैं हमारे दोनों मुख्य अतिथियों को। एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई। खासतौर से पहले मैं चाहता हूं कि हमारे टीचरों के लिए, मेहमानों के लिए तालियां कम ना हो। जो कि वाइस प्रेसिडेंट है BSBM के कलकत्ता से चल कर आए हैं टीटागढ़ की सरजमी पर, उनको सम्मानित कर रहे हैं। शुक्रिया सर आपका। अब मैं दीवान अनिसुर रहमान साहब से गुजारिश है वो आए सामने है। अंकुर भाई हमारे प्रेसिडेंट है इंद्रवंदना गुजर हाई स्कूल के। विकास सिंह जी टीटागढ़ म्यूनसिपलिटी के काउंसिलर, उनसे निवेदन है, गुजारिश है कि वो मंच पे आए। हमारे प्रीतम शर्मा सर से गुजारिश है कि वो स्टेज पे आए। प्रीतम शर्मा सर लड़ाकू नेता वार्ड नंबर 4 के, और पार्वती देवी जी 6 नंबर वार्ड के काउंसिलर, उनसे गुजारिश है कि वो मंच पे आए। सोनू साहब जी टीटागढ़ का 4 नंबर वार्ड पहुंच गया है बंगाल का कोने कोने में। शांति, समृद्धि, एजुकेशन, सेकुलरिज्म, टीचर्स डे का दिल का पहला काम है। कंडरी 4 नंबर वार्ड तृणमूल कांग्रेस अरफान भाई से मिला, अरमान भाई से मिला। काम करने पे सबसे अच्छा है आपको जनाए सलाम, आपको जनाए सलाम, आपको जनाए सलाम। सलाम क्यों पेश करेंगे उनका? क्योंकि ऐसा काम वो कर रहा है। हम लोग का अरमान भाई, उनको सलाम नहीं पेश करूंगा तो किसको सलाम पेश करूंगा? बहुत कुछ बात बोलूंगा आप लोग के सामने, लेकिन मैं पहले आप लोग को माफी मांग ले रहा हूँ। मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, टूटा फूटा होगा, माफ कर दीजिएगा। लेकिन जो बात कहूंगा मैं दिल से बोलूंगा। इंशाअल्लाह 4 नंबर वार्ड का जितना आदमी है इंशाअल्लाह काम में लगेगा। आज हम आया कलकत्ता से, किसका बुलाव पर मैं आया हूं मैं आप लोग का हरदिल अजीज काउंसिलर अरमान भाई का बुलाया, हम आया आप लोग का सामने। फर्स्ट टाइम मैं आया यहाँ। चंद बात आपको बोलूंगा, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। इंशाअल्लाह आज मैं पा रखा हूं 4 नंबर वार्ड में। अगर आप लोग हम लोग का हमारा साथ देंगे, अरमान भाई का साथ में रहेंगे, इंशाअल्लाह 4 नंबर वार्ड कहां से कहां पहुंच जाएगा आप लोग देख लीजिएगा। कुछ दिन पर बाद ही देख लीजिएगा आप लोग। तो आज ये मंच पर बैठा हुआ है हमारा अत्यंत क्लोज मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, तृणमूल कांग्रेस का संख्यालघु माइनॉरिटी सेल का जनरल सेक्रेटरी
जनाब मोहम्मद एतशमुल सिद्दीकी साहब है मेरा साथ कलकत्ता से आए हुए हैं भोंगी और संख्यालघु बुद्धि मंच का वाइस प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर हसन जमील साहब, कलकत्ता डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट देवान अनिशुर रहमान साहब, नेदिया डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट हम लोग का बैतुल्ला मंडल साहब, तृणमूल IT सेल का जो देखभाल करते हैं हम लोग का मेरे साथ आए हुए हैं जाकिर साहब, वो भी है। यहाँ बहुत आदमी बैठा हुआ है, सबका नाम हमको मालूम नहीं है। हम लोग का पिताजी भी है यहाँ बैठा हुआ है, लोगों का पिताजी भी है और मेरा सामने बहुत आदमी है। सबको मैं हैप्पी टीचर्स डे मेरा दिल का सलाम पेश कर रहा हूँ आपको, नमस्कार पेश कर रहा हूँ आपको। कुछ बात आपको बोलूंगा मैं आज। बारिश तो अच्छा है, अल्लाह का रहमत है। तो और यहाँ मेरा भाई मेरा मौजूद है यहाँ हालत बंगाल को आप लोग सब जानते हैं, अशफाक भाई, मेरा हैदर भाई भी है। सबको मैं सलाम पेश कर रहा हूँ। मैं 2-4 बात बोल के खत्म करूंगा, बहुत देर से प्रोग्राम चल रहा है आपका यहाँ। हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं टीचर्स डे, टीचर लोग को सम्मानित किया जा रहा है। देखिए एक कहावत है, एक इंजीनियर अगर कुछ गलती करेगा तो एक बिल्डिंग टूट जाए तो बिल्डिंग गिर जाए। एक डॉक्टर साहब बैठा, डॉक्टर हसन जमील साहब है, डॉक्टर ने कुछ गलती करेगा तो एक पेशेंट जो है मर जाएगा। लेकिन एक टीचर अगर गलती करेगा तो समाज खत्म हो जाएगा। टीचर का अहमियत बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा है। हम लोग टीचर को बोलते हैं बांग्ला में मानुष तैयारी करार कारीगर, आदमी बनाता है, आदमी को तैयार करता है। टीचर एक गलत काम करेगा, आदमी पर बुरा असर पड़ेगा, समाज को बुरा असर पड़ेगा। तो हम बार बार एक ही बात बोलना चाहूंगा, टीचर को सम्मान करिए, टीचर को कदर करिए, उनसे बड़ा कोई है ही नहीं। लेकिन सबसे बड़ा टीचर कौन है? सबसे बड़ा टीचर है मेरा वालिद साहब, मेरा वालिद है, दोनों बड़ा टीचर। इससे बड़ा टीचर कोई हो ही नहीं सकता, ये नहीं बड़ा टीचर बन जाए। तो मेरा कहने का मतलब है टीचर वो किसी का होता है। कोई बड़ा भाई छोटा बेटी को पढ़ा रहा है, अपना बहन को पढ़ा रही है, वो भी टीचर है। टीचर हर जगह होता है। हेलो, लेकिन दो चीज ऐसा है उसका कोई भाग बंटवारा नहीं हो सकता है। जिंदा हम लोग को प्रॉपर्टी है उसका भी भाग बंटवारा होता है। जो अरमान साहब का पिताजी बैठा हुआ है, अरमान साहब नहीं फकर कर नहीं कर सकता, कह सकता है जो पिताजी सिर्फ मेरा है, उसका कोई किसी का भाई है, किसी का चाचा है, किसी का फूफा है, बहुत कुछ हो सकता है प्रॉपर्टी के बाद। लेकिन शिक्षा ऐसा चीज है तब इसका भाग बंटवारा नहीं हो सकता। शिक्षा अपना बल पर हम कायम कर सकेंगे, इसका कोई छीन भी नहीं लेंगे, कोई बंदूक देखा के भी इसको हासिल नहीं कर पाएगा जब हम डिलीवर नहीं कर सकेंगे। और एक चीज का भाग नहीं होता, उसका नाम है अमल। हम जितना करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे, कुरान शरीफ पढ़ेंगे, जो जिसका मजहब का हो, इसका कोई भाग बंटवारा नहीं होता है। तो बहुत मेरे एक भाई बोल रहे थे और कुछ शिक्षक जो था वो बोल रहे थे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, राष्ट्रपति बनना है, बहुत कुछ बोल के गया है। लेकिन हम लोग कुछ बनने नहीं होगा, पहले सही तरह से आदमी बनिए, तब बहुत कुछ हो जाएगा। एक वाकया पेश करूंगा आपका सामने में। हम जो अभी बोला था सबसे बड़ा टीचर है मेरा अब्बा अम्मा, उस वाकया एक तो पेश करूंगा आपका सामने में। हम लोग पॉलिटिशियन हो, पॉलिटिक्स करता हूँ हम लोग। बहुत आदमी हम लोग के पास आता है, अपना काम मजबूरी जब आदमी हो जाए, जब आदमी का कुछ जरूरत महसूस होगा तब पॉलिटिशियन के पास आता है। अरमान भाई के पास आएंगे, हम लोग के पास आता है। तो मेरा फ्राइडे मेरा एता भाई बोल रहा था, मेरा फ्राइडे में मौलानी में मेरा ऑफिस है, दफ्तर है मेरा, और मेरा तृणमूल भवन में भी मैं ट्यूजडे को शनिचर को हम बैठता हूँ। एक दिन मौलानी में मैं बैठा हुआ हूँ। आज का दिन बोलना एक बात बहुत जरूरी है, आप लोग तो ध्यान से सुनिएगा, बात को गौर करिएगा इसमें। तो मैं मौलानी मेरा दफ्तर में बैठा हुआ हूँ, तो मेरा जो सामने बैठा मेरा साथ रहता महमूद है, सही फोटो है, लोग मेरे साथ रहता है, मेरा जो आदमी मेरा फोटो खींच रहे लोग। तो बहुत क्राउड आता है मेरा दफ्तर में, बहुत आदमी आया हमसे मिलने के लिए। एक उम्रदराज आदमी था,
लगभग उनका उम्र है 80 ईयर्स ओल्ड। उनका सहधर्मी उनका वाइफ था, वो भी मेरे साथ मिलने के लिए आया है। उनका उम्र प्राय 70 प्लस है, 70 प्लस 80 प्लस दोनों। ऐसा मुझ पर चल नहीं ठीक से पा रहा है, पूरा ऐसा हो गया। हाँ, मेरा बार बार हमको देखने का कोशिश कर रहा है, तो हम बोला, मेरा जो महबूब है उनको बोला, सीनियर सिटीजन है बाबू, उनको पहले मेरा पास लेके आ जाओ। एक इंग्लिश में कहावत है, लर्नेड फुलनेस, लर्नेड एंड फुलनेस, ऐसा कैसा हो सकता है? हम एक तरफ बोल रहा शिक्षित हो, अब एक तरफ बोल रहा मूर्ख हो, इलिटरेट, ऐसा कैसा हो सकता है? होता है। तो जब वो उम्रदराज आदमी मेरा पास मेरा ऑफिस में आया, एक ही ने मेरा भाई बहन लोग को बैठा हुआ है, तो आके मेरा पाँव पकड़ लिया, पाँव पकड़ रोने लगा। मतलब पाँव के पकड़ जाते, उम्रदराज आदमी है, ये गलत बात है, पाँव मत पकड़े, क्या हो? बोली, बोला सर हम लोग 2 दिन से भटक रहा हूं, इतना आदमी के पास गया हूं मैं, कोई मेरा मदद नहीं किया। अगर आप हमको यहां से हटा देंगे, मदद नहीं करेंगे, तो हमको सुसाइड करने पड़ेगा। हम बोला इंशाल्लाह आपको दावे के साथ कह सकता हूं, फकर के साथ कह सकता हूं, मेरा दफ्तर में जो आता है खाली हाथ कोई नहीं जाता, उसका झोली में कुछ न कुछ नहीं दे देता है। तो क्या हुआ? बोलिए, क्या ओके है आपका सामने में? बोला सर मेरा लड़का लड़की ने हमको घर से निकाल दिया। हम लोग, क्या लड़का लड़की आपका है? बोला सर मेरा 2 लड़का है और 1 लड़की है। क्या करता है वो लोग? तो सर मेरा लड़का है बड़ा सर्जन डॉक्टर है, एमएस किया है ऑर्थोपेडिक में, हड्डी का जो डॉक्टर होता है ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, सर्जन है। और मेरा और एक लड़का है सिविल इंजीनियर। और मेरा लड़की जो है वो ज्योग्राफी और भूगोल बोलते हैं हम लोग, ज्योग्राफी का शिक्षिका है, स्कूल में पढ़ाती है, टीचर डे हम लोग मना रहे हैं। अफसोस का साथ कहने का है। तो बोलते बोलते आदमी बोला सर मैं एक प्राइवेट फर्म में काम नौकरी करता हूँ, मेरा सैलरी था उस जमाने में 1200 रुपया, 1200। तो सर उस टाइम तो ममता दी नहीं था, मिड डे मील फ्री, जूता फ्री, ड्रेस फ्री, सब फ्री। पॉकेट का पैसा निकाल के लड़कों को पढ़ाने पड़ता था, ट्यूशन देने पड़ता था, किताब खरीदने पड़ता था। तो एक ही नहीं मानेगा सर, 1200 रुपया जो मेरा नौकरी में सैलरी था उससे मैं नहीं कर पाता था। तो इसलिए ऐसा दिन कुछ नहीं था, पानी पी के मैं दिन गुजार दिया। लड़कों को डॉक्टर बना, इंजीनियर बनाने के लिए, लड़की को शिक्षक बनाने के लिए हम कुछ नहीं खा, सिर्फ पानी पी के दिन गुजार दिया। सर कोई फिल्म नहीं है, कोई गप नहीं है। लड़का को डॉक्टर इंजीनियर एवं लड़की को भूगोल का शिक्षिका बनाने के लिए मेरा खून भी, ब्लड भी देने पड़ा। ब्लड बेच के मैं पैसा लेके बनाया है। उसका मेरा लड़का लड़की ने क्या रिटर्न दिया मालूम है आपको? हमने क्या रिटर्न दिया? हम लोग बोलते हैं बांग्ला में फतुआ, हाफ कुर्ता जो होता है, हाफ कुर्ता शर्ट वो पहन के था। वो जब उठाया देखा, देख रहा चाबुक के दाग, मैंने एकदम मारा उसको, पूरा दाग बैठा हुआ। यकीन नहीं मानिएगा बहन लोग, जो भाई लोग बैठे हुए हैं, हम बात नहीं कर सका, हम खामोश बैठ गया। तो क्या हुआ? क्या देख रहे हैं? ये तो हम किताबों में सुनता था, पढ़ता था, आदमी का मेरा नजर में ऐसा घटना घटेगी हम उम्मीद नहीं कर सका। हमको खामोश 2 मिनट बात नहीं कर सका। हम 2 मिनट में खामोश से बैठ गया। उसका बाद अब लोग कलकत्ता में एजीसी बोसु कॉलेज है, आचार्य जगदीश चंद्र बोस कॉलेज, लॉर्ड सिन्हा, उसका बगल में क्रिश्चियन कम्युनिटी का एक वृद्धाश्रम है, ओल्ड एज होम है। वहाँ का मैं ट्रस्टी मेंबर हूँ। तो वहाँ जो उस टाइम देखभाल करता था उसका नाम था पीटर जोसेफ। हम पीटर को फोन लगाया, भाई पीटर तुम लोग को तो बोली बहुत फॉर्मेलिटी है, बहुत फॉर्म फिलअप करने पड़ता, मेरा जो पिता आया है, मेरा माता आया है, तो हम तुम्हारा ओल्ड एज होम में हम भेजेंगे, तुम लोग रात तक उसको रख सकोगे, कल जाके हम फॉर्मेलिटी मेंटेन करेंगे। बोला सर क्या बात कर रहे हैं?
क्या बात कर रहे आप बोल रहे भेज दीजिए, हम लोग से इंतजाम कर देंगे। तो मेरा गाड़ी जो महमूद है यहाँ खड़ा हुआ है, मेरा गाड़ी से उनको भेज दिया ओल्ड एज होम में, वृद्धाश्रम में। उसका बाद जो घटना घटा दूसरा दिन, वो सुनकर हम लोग हैरान हो जाएंगे। हम लोग बहुत बोलते हैं इंटेलेक्चुअल पर्सन कौन है, जो डॉक्टर है, जो अवार्ड दिया जा रहा है यहाँ से, वो लोग इंटेलेक्चुअल पर्सन है। कोई बोलता जो राज चक्रवर्ती फिल्म डायरेक्टर है, आप लोग का एमएलए है, वो इंटेलेक्चुअल पर्सन है। कोई बोलता है जो गाना गाता है, नाटक यात्रा करता है, फिल्म करता है, वो लोग इंटेलेक्चुअल पर्सन है, बुद्धिजीवी है। हम लोग सब झूठा है। अगर कोई बड़ा बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल पर्सन है, वो मेरा माँ, मेरा माता, उससे बड़ा बुद्धिजीवी कोई हो ही नहीं सकता। तो उस दिन ऐसा सामने मेरा ओके आया है, मेरा सामने में हम जब जाके वो वृद्धाश्रम ओल्ड एज होम में जाके पहुंचा हूँ, सुबह 10 बजे मैं निकला मेरा काम से, हम जाके पहुंचा तो माता जी जो थी वो मेरा पास चला आके हम बोला माता जी इधर आइए मेरा पास। एक फॉर्म दिया गया, पीटर ने हमको जो फॉर्म दिया, फॉर्म फिलअप कर लिया। उसमें एक जगह कलम है, माँ का नाम, अब्बा का नाम, बच्चे लोग का नाम, एड्रेस सब लिखने पड़ता है। तो हम बोला माता जी इधर आइए, आप लोग का नाम बोलिए। नाम बोला हम लोग का, आपका जो लड़का लड़की दोनों बोल। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। और आप तमाम हमारे जो यहाँ पे तशरीफ फरमा है, हम तमाम लोगों को टीचर डे के मौके पे बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ हमारी ओर से, हमारी पार्टी की ओर से। इसलिए कि आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, आज टीचर डे है। आज से समझ लीजिए बहुत दिन पहले हमारे भारत में एक ऐसी शख्सियत पैदा हुए जिनका नाम हमारे 5 सितंबर को 1888 सन में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का पैदाइश हुआ था। तो ये बहुत मुबारक दिन है। सर्वपल्ली जी के याद में हम लोग 1888 में जो वो पैदा हुए, और वो समझ लिए पहले उपराष्ट्रपति भारत में और दूसरे राष्ट्रपति के तौर पर वो पूरे देश में अपने लोगों को सेवक की खिदमत किए हैं। हमारे साथ आए हुए हमारे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस कोर कमेटी के सदस्य एवं बीएसपीएम बंजो संगठन लोगों बुद्धिजीवी मन के रूहे रवा मेरी मुराद प्रोफेसर वैजुल हक साहब के लिए एक जबरदस्त तालियों से खैर मकदम करे। एक ऐसा शख्स जो समझ लिए कि लोगों के साथ में बिना झिझक हम लोगों के लिए, मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, जरूरतमंदों के लिए वो काम आते हैं जो और कोई नहीं, हमारे प्रोफेसर वैजुल हक साहब है। मैं जबरदस्त खैर मकदम करता हूँ कि आपने बहुत कीमती टाइम हमसे, जो हमारे अरमान मंडल भाई 2 दिन पहले हम लोगों को दावत देने के लिए कलकत्ता में गए कि भाईजान हम लोग चाहते हैं कि आप लोग कलकत्ता से आकर के हमारे टीचरगढ़ जो ऐतिहासिक जगह है, कॉस्मोपॉलिटन सिटी, ये समझिए यहाँ हर टाइप के लोग यहाँ रहते हैं। तो हमने उन्हें बोला, हमने उन्हें आश्वासन दिया कि हमारे प्रोफेसर वैजुल हक साहब और हम लोग इंशाअल्लाह ताला रहमान आपके इतना बड़ा प्रोग्राम जो है टीचर डे, जो हम लोग जरूर आएंगे। तो हम उनको बहुत मौलाना इस्तेमाल करते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे मुजीबुर रहमान साहब, हमारे जो दीवाना निसुर रहमान साहब हैं, हमारे डॉक्टर असम जमील साहब हैं, बैतुल्ला साहब है, और हम तमाम यहाँ जो आज इस प्रोग्राम को जो समझ लिया आयोजित किया हमारे अरमान मंडल जो इस 4 नंबर वार्ड का टीटागढ़ के काउंसलर है, और यहाँ पर हमारे तमाम जितने भी काउंसलर साहब लोग हैं और तमाम हमारे जितने भी माँ बहने, हमारे जितने भी उस्ताद वगैरह है, सबको हमारा नमस्कार, सलाम, दुआ, प्यार। देखिए हम लोग टीचर डे, देखिए सबसे बड़ी बात है कि हम लोग आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि हम लोग जो है हमारे जो बच्चों को आला से आला तालीम अगर देने का कोई काम अगर करते हैं तो माँ बाप के बाद वो अगर कोई दूसरा होता है तो हमारे उस्ताद होते हैं जो हमें दीन और हमारे बुनियादी जो तालीम हमें देते हैं। तो ये एक ऐसा दिन है कि हम लोग टीचर डे जो हम लोग पूरे भारत में आज के दिन समझ लिया हम लोग मनाने जा रहे हैं और मना रहे हैं। तो आज
जो इतनी बड़ा दिन है, हमारे जितने भी यहाँ पर उस्ताद, जितने भी हमारे टीचर बैठे हुए हैं, खासकर आप लोगों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोग अपना कीमती टाइम अपने बच्चों को, हमारे बच्चे आप लोगों को जिस तरह से पढ़ाते हैं, तो आप लोगों को बहुत मुबारकबाद देंगे। देखिए, इल्म के बगैर जिस तरह से हमारे अरबी में कुरान में आता है, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, पहला शब्द जो आता है इकरा, पर तालीम के बगैर कोई भी चीज जो है मुकम्मल नहीं हो सकता। खासकर आज के मॉडर्नाइज जमाने में हम टीचर वर्ग के तमाम जो भी हमारे यहाँ पर तशरीफ फरमा है, तमाम लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि बगैर एजुकेशन के कोई भी आदमी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए कि हमारे इस्लाम में आया है कि इल्म हासिल करने के लिए अगर आपको मुल्क चीन भी आना पड़े तो आप इल्म हासिल करने के लिए चीन जाइए। हमारे आका इनामदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था। इसलिए इल्म एक ऐसी चीज है, इल्म के बगैर कोई भी चीज मुकम्मल नहीं हो सकती है। हम तमाम लोगों को कहेंगे कि पढ़ना एक समझ लिए, अभी जिंदगी का समझ लिए मेन मकसद हर बच्चों को सोचना चाहिए कि बगैर तालीम का हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आज देखिए कितना बड़ा खुशी का लम्हा है कि कुछ दिन पहले आज हम चंद्रयान पर हमारे जो जितने भी साइंटिस्ट लोग थे, आज हम लोग पहुंचे हैं। तो ये सिर्फ तालीम के बदौलत है। हम लोग एजुकेशन के लिए हम तमाम लोगों को कहेंगे कि आला से आला तालीम, आधी रोटी खाएंगे, सूखी रोटी खाएंगे, लेकिन ये अदब करें, ये अहद करें। हमारे जितने भी गार्जियन यहाँ बैठे हुए, जितने भी हमारे लोग बैठे हुए, ये सोचे कि हम अपने बच्चों को आला से आला तालीम दे करके एक अच्छा एक देश में आज समझिए कि हम समझते हैं बड़ा IAS बनाए, बड़ा IPS बनाए, इस तरह का डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए। ये हर माँ बाप को हम अरमान माँ को कहेंगे, आपकी इस एरिया में है, आपके जितने भी इलाके के जो भी छोटे बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, इलाका पर ध्यान दिए तालीम के लिए। हमारे प्रोफेसर वजील हक साहब जो आए हुए यहाँ पर, आपको जानना होगा, वो तमाम स्कूल से वो रिलेटेड है। और हम आप लोगों को अरमान भाई को कहेंगे कि एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी काम हो, हमारे प्रोफेसर वजील हक साहब से आप कंसल्ट करेंगे, इंशाअल्लाह ताला रहमान हर जगह आपको इंशाअल्लाह आपको उनसे हेल्प मिलेगा। मैं प्रोफेसर वजील हक साहब के बारे में 2-4 बात करता हूँ। तो स्टेट बंगो संघों को बुद्धिजीवी जो हमारे दीदी, जो हम सबकी नेत्री ममता बनर्जी हमारे जो गार्जियन है, उनको 2013 में जो डायरेक्ट जो पार्टी नहीं कर सकते हैं, जो डायरेक्ट पार्टी नहीं करते हैं, वैसे लोगों को डायरेक्ट BSBM मतलब बंगियों संघाल लोगों बुद्धिजीवी मंच पे वो आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। और उसके बाद में आपकी कोई भी काम हो तो वो समझिए वो खड़े रहते हैं। उनको 2013 में, आज से 10 साल पहले हमारी नेत्री जी ममता बनर्जी ने उन्हें कहा कि आप पूरे राज्य में घूम घूम करके, तो आप सोचिए कि BSBM के हमारे समय के होल वेस्ट बंगाल में हमारे लिए हमारे जितने भी जरूरतमंद है, हम तमाम लोगों के लिए अध्यापक वजील हक साहब हर टाइम खड़े रहते हैं। मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ कि अभी हम लोग डायरेक्ट जो है तृणमूल भवन से हमारे प्रोफेसर वजील हक साहब का आज साप्ताहिक, आज वहाँ हफ्ता में एक दिन वो मंगल को तृणमूल भवन में बैठते हैं, 3 बजे से लेकर के 3 घंटा तक वो शाम के 6 बजे तक बैठते हैं। तो वहाँ से पूरे काम खत्म कर करके प्रोफेसर वजील हक साहब यहाँ पे आए हैं। और वो हफ्ता में एक और दिन जो है वो जुमा का दिन है, वो उनका अपना जो ऑफिस है, अपना जो दफ्तर है, वो मौला अली मजार के ठीक अपोजिट में है। लोगों की खिदमत के लिए मैं ऐसे लोगों को मैं सलाम करता हूँ, मैं ऐसे लोगों का भावना की कदर करता हूँ। प्रोफेसर वजील हक साहब जैसा अगर इंसान हम समझते हैं कि रियासत मध्य बंगाल में सिर्फ 10 अगर होगा तो हम समझते हैं हमारे 10 से 11 करोड़ पॉपुलेशन वाले हमारे जो राज्य है उसमें कोई भी एक आदमी को कोई भी तकलीफ नहीं होगी। प्रोफेसर वजील हक साहब बिना हिलक इस तरह से खिदमतगार, मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को आगे बढ़कर करके और हम समझते हैं आना चाहिए। तो हमारे अरमान मंडल साहब जो आज प्रोग्राम के हैं, मैं उन्हें बहुत मुबारकबाद दूंगा कि आज टीचर डे के मौके पे आपने इतनी जबरदस्त तरीके से आप हमारे जितने भी हमारे उस्ताद, जितने भी हमारे टीचर यहाँ बैठे हुए हैं, तो बस यही कहेंगे कि देखिए इल्म से बड़ी कोई दौलत नहीं है। इसलिए इल्म हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना चाहिए। बगैर इल्म का कोई भी चीज आपको पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए हर हाल में इल्म सीखने के लिए जो भी जरूरत पड़े, तो हम समझते हैं हमारे जितने भी यहाँ गार्जियन है, जितने भी हमारे हजरात हैं, हम आप लोगों से कहेंगे कि अपने
अपने बच्चों को आला से आला तालीम दे करके इसी इलाके से कोई डॉक्टर बने, इसी इलाके से कोई इंजीनियर बने, इसी इलाके से कोई और बड़ा ऑफिसर बने, इसी इलाके से हम समझते हैं कोई नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा कोई इंसान बने, हम इसी इलाके से डॉक्टर हमारे जो है सर्वपल्ली उनके जैसा कोई उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति बने, इसी इलाके से हम समझते हैं कि अच्छे अच्छे लोग इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। तो मैं अपनी बात को मैं ज्यादा तवील नहीं करूंगा, आप लोगों से बस यही कहना चाहूंगा कि इल्म एक बहुत बड़ा खजाना है। आइए शेख साहब, अब्दुल सत्तार सर मेरी गुजारिश है वो मंच में आए। अब्दुल सत्तार सर मोहम्मद असलम सर, सुफियान आलम, भवन आपके पास, ठीक है, सम्मान कर रहे हैं। सब करते रहिए भाई। हेलो एक साथ रेडी रखिए आप। श्रीनिवासा राव जी को सम्मानित करेंगे। हमारे श्रीनिवासा राव जी को सम्मानित करने के लिए मैं विष्णु सिंह जी भी उसी हिसाब से उनके ये सपुत्र हैं, बेटे हैं, लिहाजा एक बाप अपने बेटे को सम्मान दे रहा है। ये देखकर कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन आप ताली नहीं बजा रहे हैं, ये हमें खराब लग रहा है। ये देखिए, अभी हमें खबर मिली है कि शेख मोहम्मद बिलाउल हक और इंडिया तृणमूल कांग्रेस कोर कमेटी के मेंबर जो आज के खुसूसी चीफ गेस्ट की हैसियत से उन्हें निमंत्रण दिया गया था, वो हमारे बीच उपस्थित होने वाले हैं। शेख वाइजुल हक साहब बस करीब थोड़ा जोरदार तालियां बजाएं टीचरों के लिए। आज के दिन हमारे उस्ताद मोहतरम के लिए काफी अहमियत रखता है। सना साहब इस्तेमाल कर रही है। थोड़ा तालियां होती सम्मानित कर रही है हमारे लक्ष्मी मैडम को। और मैं आवाज देना चाहूंगा, मैडम ये साला बेगम जी उनका वेलकम कर रही है, उपलियो बैग पहनाकर गिफ्ट देकर। करूंगा, अनुरोध करूंगा, कृपया आगे आए। पल्लवी मैडम जी, थैंक यू मैडम। आइए मैडम, स्वप्ना मैडम जी से मैं अनुरोध करता हूँ थोड़ा कैमरा की तरफ देखते रहे और थोड़ा तालियां बजती रहे भाई। बार बार बोलना पड़ता है। अपने इलाके के नेता भाई हमारे टीचर मीना दास मैडम जी को मैं चाहूंगा कृपया थोड़ा सा आगे आ जाए, थोड़ा सा आगे आ जाए।
धन्यवाद, शुक्रिया। फरमान आलम। नीलम सिंह, मैडम नीलम सिंह। महबा खातून कृपया मंच पे आएंगी। तराना भी महबा खातून बराए मेहरबानी मंच पे आए। तराना तरह से जानते भी है, पहचानते भी है, मानते भी है। लिहाजा ताली बजाइए भाई मेरे। हाँ, ये मोहब्बत है भाई। हाँ, सबसे पहले तो मैं समझ सकता हूँ कि काफी लेट हो गया, इसीलिए मैं माफी चाहता हूँ कि आप लोग पानी भी आए तो आप लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं इसके लिए जो भी यहाँ पर तकलीफ हुआ है मैं उससे क्षमा चाहता हूँ, और जो भी यहाँ है सबको मैं छोटे से लेकर बड़े तक, अपनी माँ बहन या बुजुर्ग, चाहे हमारे व्यवसायी भाई, चाहे हमारे टीटागढ़ थाना के प्रभारी, सबको मैं नमस्ते और सलाम कहता हूँ टीचर डे के मौके पर। आज हम लोग 5 सितंबर को भी ये टीचर डे मना रहे हैं। श्री डॉक्टर राधाकृष्ण वल्लभ जी के हम लोग जो है टीचर डे उनके नाम पर हम लोग मना रहे हैं। आज हमें मेरा मन को इतना सुकून मिल रहा है कि आज हम अपने टीटागढ़ बास बगान में हर एक मास्टर और मैडम को सबको मैं एक जगह कर सका और उनका सम्मान कर सका। दुनिया में मैं एक चीज बोल सकता हूं कि एक होता है अपने बाप माँ का सेवा करना और दूसरा होता है टीचर और मैडम का सेवा करना, क्योंकि दूसरे स्थान में हम लोग उन्हें गुरु का दर्जा देते हैं कि आज उन्हीं के पढ़ाए हुए जो लड़के, चाहे स्टूडेंट है चाहे बच्चियां है, काफी जगह पर पहुंच रही हैं। कोई जज बन रही है, कोई डॉक्टर बन रही है, कोई नर्स बन रही है, तरह तरह के जो है, कोई कमिश्नर बन रही है और कोई हमारे देश का जो है फौजी हो रहे हैं। तो आज उन्हीं की पढ़ाई हुए पर आज आप लोग जो है जगह जगह पर पहुंच रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। तो मैं बस छात्र और छात्रियों को मैं एक चीज बोलना चाहता हूं कि आप लोग टीचर डे मनाएं और आप लोग जिस तरह के आप इंसान बने हैं, आप टीचर डे मनाएं। अगर वो नहीं है तो उनके याद में आप किसी भी मास्टर को एक गुलाब फूल दे दें, यही अपना कर्तव्य है। और जिंदगी में कुछ है चाहे ना है, आपका इंसानियत और आपका जो इंसानियत है और लोगों का सेवा करना, और सबसे बड़ी जरूरी है आपका जिंदगी में पढ़ाई। पढ़ाई नहीं तो जिंदगी में कुछ एक नेक इंसान बने, देश का नाम रोशन करे, हमारे इंडिया का नाम रोशन करे, अपने बाप मान का रोशन करे और अपने इलाका का नाम रोशन करे, और खास खास अपने मास्टर का नाम रोशन करे और स्कूल का नाम रोशन करे। क्योंकि आप जब तरक्की के रास्ते पर चलते हैं तो आज गर्व होता है, तो गर्व के
साथ बोल नहीं सकते हैं। ये हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा है। आज देखो ये डॉक्टर बन गया है, तो कोई आर्मी बन गया है, कोई कलेक्टर बन गया है, तो कोई नर्स बन सका है और कोई ऑफिसर बन सका है, तो उन्हें गर्व होता है। तो आज इसीलिए हम जो है हर एक साल टीचर डे मनाते हुए आए हैं और जब तक हम हयात में रहेंगे और इसी तरह से टीचर लोग का मैं सेवा करते रहूंगा, करता रहूंगा, करता रहूंगा, क्योंकि आज हमें टीचर लोग का सेवा करने में आज हमें जो है उन्हें गुरु का मैं गुरु का रूप देना चाहता हूं कि सच में वो गुरु हैं और गुरु ही रहेंगे। आज उनका मैं याद में टीचर डे मना रहा हूं, इसीलिए कुछ जो है हमें भी ज्ञान और कुछ भी मेरे अंदर में कुछ ज्ञान आ जाए कि कुछ मैं लोगों का सेवा कर सकूं और मैं कुछ काम आ सकूं और अपने इलाके के नागरिक के लिए काम आ सकूं। मैं जानता हूं कि मुझे कुछ गलती होती है, मैं मान रहा हूं इस बात को, लेकिन मैं ये इलाका के लिए हमेशा अच्छा ही चाहा हूं और अच्छा ही चाहते रहूंगा। मैं किसी के व्यक्ति के लिए मैं खराब नहीं सोचना सकता। मैं चाहता हूं कि आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए, आपके साथ हम हैं, आपको किसी भी चीज की जरूरत है, हम लोग 2300 वार्ड के काउंसिलर आपके पास खड़े हैं मदद करने के लिए। आपको कहीं काम में जॉब करना हो या किसी तरह का मदद हो, हम लोग को जितना जरूरत होगा हम लोग काउंसिलर 2300 जो है आपका मदद करेंगे। लेकिन हाँ, गलत का साथ हम लोग नहीं देंगे, क्योंकि हम लोगों को एक ही बात सिखाते हुए आए और एक रहने का हम इंतजार करते हैं और एक रहने में ही फायदा है। तो आइए ये हिंदू मुसलमान का ये दूरी को खत्म करें और प्यार और अमन के शांति के साथ एक प्यारा भारत बनाए, एक प्यारा भारत बनाए। ये जो तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं, ये तो हमारे डॉक्टर राधा कृष्ण वल्लभ का जी का आज उनका हम लोग टीचर डे मना रहे हैं। उनका जितने भी तारीफ किया जाए कम है, क्योंकि वो काफी महान लोग थे। वो शिक्षा के लिए अपने छात्र के लिए हमेशा बढ़िया बात सिखाते हुए आए हैं और छात्र जो है उनका बात को अमल करते हैं। तो मैं छात्र और स्टूडेंट को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग मन लगा के पढ़िए। मैं ये स्टेज के मंच के ऊपर से कहना चाहता हूं कि आप लोग मन लगा के पढ़िए। जिस तरह से आप लोगों का जरूरत है, हम वादा करते हैं जिस तरह से होगा काम हम आपके पास खड़े रहेंगे, या तो शरीर से या और कोई चीज से मदद के लिए आपके पास खड़े रहेंगे। जो भी व्यक्ति हमारे पास आता है वो नाम लिखाने के लिए या किताब या कॉपी हमें जितना जुटता है हम उनका मदद करते हैं इंसानियत के लिए। लेकिन ये हमारा फर्ज है। हमारी जो मुख्यमंत्री जो है हमें हमेशा सिखाते हुए आई है धर्मो जार जार उत्सव सभा। तो आज हम लोग हर एक हिंदू मुस्लिम तेलुगु सब मिल के हर एक त्योहार मनाते हैं। तो आप ये त्योहार हमेशा जो है अच्छा लगता है। आप कोई भी त्योहार को अकेला नहीं मना सकते हैं, क्योंकि आप सब काट पी के अगर नहीं मनाए तो त्योहार में रौनक और खुशियां नहीं देखी जाएगी। तो आप लोग मिलजुल के मनाएं और किसी की बातों को बहकावा में ना आए। आपका जिंदगी कितने दिन का मोल है। आज आप देख रहे हैं कोई 50 साल जी रहा है, कोई 60 साल जी रहा है। तो आज आपको ईश्वर अल्लाह भगवान गॉड आपको दुनिया में भेजे, तो आप जो है ये दुनिया में आके क्या किए ये आपको जवाब देना होगा कि आप यही किए कि दूसरे के लड़के को गड्ढा में गिराए या उसको गड्ढा में डुबाए, उसे कभी सही रास्ता पर ना ले गए। लेकिन मैं डंके के चोट पर कहना चाहता हूं या टीटागढ़ के या कहीं के भी लोग को कि मैं एक को व्यक्ति को क्या एक की लड़के को या एक को लड़की को मैंने खराब किया होगा तो आपका जूता मेरा सर, ये गारंटी के साथ से बोलना चाहता हूं। मैं हमेशा उन्नयन का काम किया हूं और जब तक शरीर में जान रहेगा उन्नयन का ही काम
करता रहूंगा। कोई माई का लाल नहीं है कि जो मुझे रोक सके, क्योंकि हमारे ऊपर पीर औलिया का और अल्लाह ताला का और इमाम साहब का मेरे ऊपर दुआ है, और मेरी माँ और बहनों और बुजुर्ग का दुआ है और कर्म है। जो चाह रहे हैं वो कभी हमें ना गड्ढे में गिरा सकते हैं, और खुद गिराते गिराते खुद गड्ढे में गिरेंगे। यह इतिहास गवाह है कि जो सिर्फ इंसान को देख के चलेगा, ना ही वो कभी मुकाम पर पहुंच सकता है, ना ही तरक्की कर सकता है, और ना ही कभी आगे बढ़ सकता है। तो मैं बस की तरह के लोगों को मैं ना कभी देख के जला हूं, और ना ही कभी किसी के बारे में मैं बुरा सोचता हूं। मैं हमेशा अच्छा ही सोचता हूं कि आप लोग आगे बढ़े और हमारे बांसबगान डेवलप हो, और भी इलाका डेवलप हो। आप लोग आगे बढ़िए और उन्नयन का काम कीजिए। आप कोई भी बात हो बैठ के हल किया जा सकता है, लेकिन कोई भी बात से आप लोगों के मन में चोट पड़ता है, मैं जान रहा हूं, लेकिन मैं बोलते हुए मुझे मन जो है रोने का मन करता है। क्यों? कि हमारे पास कुछ लोग हैं कि जो खराब सोचते हैं, इसीलिए मेरा मन में दुख लगता है। हम सब दिन भर खाना नहीं खाए कि कैसे इलाका का इज्जत आबरू और मान सम्मान है। मैं अपना काम करता हूँ, लेकिन लोग हमारे पीछे लगते जाते हैं, लेकिन मैं कभी डरता नहीं हूँ और ना ही कभी डरूंगा, क्योंकि मैं एक शेर माँ का बेटा हूँ। जब तक जान रहेगा तो मैं कभी पीछे मुड़ के नहीं देख सकता। मैं सिर्फ आगे बढ़ना चाहता हूँ और आगे बढ़ता रहूंगा। कोई कमाई कराई नहीं नहीं सकता। मैं अपने श्री राष्ट्रपति को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज हम लोग ऐसे नेतृत्व पाए और हम गर्व से बोल सकते हैं कि वो हमारे देश के आन है, बान है, शान है, हमारे भाई हम लोग हमेशा एक को माने हैं, एक को ही मानते रहेंगे। हम दलबदलू का काम नहीं करते, हम सिर्फ अपने आवाम के लिए काम करते हैं और जिसके साथ भी रहते हैं ईमानदारी के साथ रहते हैं। कोई अगर चाहे कि करोड़ों में कीन सके, वो किसी के माल में लाल में दम नहीं कि जो हमें पैसे से कीन सके। मैं प्यार से बिक्री हो सकता हूँ, लेकिन किसी से डरवाने से या पैसे से मैं बिक्री नहीं हो सकता है। मैं टीकागढ़ का आन बान ये साल ये हमेशा कभी गिनने नहीं दूंगा, न गिनने दूंगा। और हिंदू मुस्लिम और तेलुगु भाई का हमेशा मान सम्मान रखूंगा और आप लोगों का साथ में रहूंगा। और हमारे टीकागढ़ हर एक प्रभारी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, हर एक ट्रैफिक पुलिस को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और हमारे कमिश्नर एरिया हमारे आलोक रोजरिया जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस तरह से आज 10-15 वर्ष आगे जिस तरह से क्राइम होता रहा, आज जिस तरह से क्राइम में रोक है, जिस तरह से नजरदारी जो चला रहे हैं ऑफिसर, हमेशा मैं उनको सल्यूट करता हूँ कि आज आपके बच्चे जो है गलत रास्ते पर ना जा रहे हैं। पुलिस जो है जो गलत करती है उनको सजा देती है, फालतू में किसी को सजा नहीं देती, अन्याय में सजा नहीं देती। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा और वैसा बोएगा वैसा काटेगा। तो मैं अपने टीकागढ़ का आन बान और शान मैं कभी झुकने नहीं दूंगा और ना ही किसी दिन में झुकने दूंगा। हमारे ममता बनर्जी जिंदाबाद, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। एक महिला होके इतना संघर्ष करके आज वो ऊंचाई पर है, इतना दूर उनके ऊपर ढाया गया है, हम लोग छोटे से देखते हुए आए। लेकिन मैं बोलने नहीं चाहता हूँ, जानते हैं क्यों? कि हम बोलेंगे तो 10 आदमी जो है मेरे खिलाफ खड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो बोलेगा कि काफी बोलने से किया, किसको कैसे फंसाया जाए, कैसे झूठ में गिराया जाए, कैसे मर्डर किया जाए, ये पिरानी बना रहेगा। तो इसीलिए मैं बहुत कुछ
जानता हूँ, लेकिन चुपचाप रहता हूँ और सभी का इंतजार करता हूँ। और मैं हमेशा इलाका की उन्नति के लिए सोचता हूँ और उन्नति के लिए ही सोचते रहूंगा। और जो जायज बात होगा, मैं जायज बात बोलने से कभी डरूंगा नहीं। और किसी भी कारण मैं बोलूंगा और किसी को टीटागढ़ वासी को मैं खराब होने नहीं दूंगा। जो चाह रहे हैं कि हमारे लोगों को या हमारे माँ के बेटे को या लाल को एक अनाथ बनाना चाहते हैं, वो कभी कामयाब नहीं होंगे। वो खुद अनाथ हो जाएंगे, वो किसी को अनाथ नहीं कर सकते। क्योंकि जो दूसरे के लड़के को खराब करेंगे वो खुद जीवन खराब कर रहे हैं। मैं बस आप लोगों टीटागढ़ का इतने समय दिए, मुझे बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं। मैं अपने भाई बहन का, माँ बहन का या व्यवसायी लोग का या जो भी हमारे यहाँ बुजुर्ग से लेके हमारे महिला या हमारे युवा जो भी है, मैं सभी को टीचर डे के मूल मौके पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ छात्र और छात्रियों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग टीचर डे मनाए, धूमधाम से मनाए, अच्छा से मनाए। बस मैं यही बोल के और खास हमारे अब्बू और हमारी माँ मैं हमेशा का विषय है कि आज वो पंडों में भी है, कबर में भी है, लेकिन फिर भी हमें याद करती है और हम भी दिल से याद करते हैं। लेकिन आज जब सुख का घड़ी आया तो हमारे पास हमारी माँ नहीं है, क्योंकि तकलीफ होता है कि जिनके पास माँ है, बाप है, उनको कदर नहीं किया जाता है, उन्हें रास्ता पर छोड़ दिया जाता है। तो मैं वो लड़के को कह देता हूँ कि आपको पोस पढ़ के बड़ा किया जाता है, बहुत कठिनाई से बड़ा किया जाता है, लेकिन आप लोग चंद दिनों में शादी होने के बाद अपने बाप माँ को भूल जाते हैं और उन्हें प्यार नहीं करते। आप वो घड़ी को याद कीजिए कि आपको छोटे से पोसा जाता है। तो मैं कुछ दोहराया नहीं जाता, जो मेरे साथ हुआ है मैं फील कर रहा हूँ। ये आपका मत है, आप अपने बाप माँ को प्यार करें चाहे ना करें। मैं बस अब चाहता हूँ कि अपने बाप माँ का सेवा करें, क्योंकि बाप माँ का पाँव के नीचे जन्नत है और जन्नत ही रहेगा। आप बाप माँ का दुआ लीजिए, कभी उनका बददुआ मत लीजिए। तो आज हमारे जो पीर मुर्शिद जो है, हमारे गुलामे सुबह जो यहाँ पर आए हुए हैं बिहार से चल के, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं आपका कभी सर झुकने नहीं दूंगा और ना ही कभी ये टीटागढ़ में कभी झुकेगा। ममता बनर्जी जिंदाबाद, हमारी शेरनी ममता बनर्जी जिंदाबाद, हमारे शेरनी ममता बनर्जी जिंदाबाद, और हमारे लड़ाकू नेता अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद, और हमारे लड़ाकू नेता श्री राष्ट्रपति जिंदाबाद, और हमारे यहाँ के टीटागढ़ अवाम जिंदाबाद, और हमारे टीटागढ़ के प्रशासन जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया अरमान भाई, अपनी जिंदगी भड़ास निकालते हुए पूरी बात बताया। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। सभी हमारे दोस्तों से गुजारिश है, अरमान भाई, अरमान भाई, अरमान भाई, अरमान भाई, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, अरमान भाई, अरमान भाई।